Hi everyone, this is Vibhuti Patwal, your host for LV's podcast today. And our today's guest is Dr. Ajay Pal Singh, who also happens to be the Dean of Pharmacy. Hi sir, how are you doing today? Yeah, today I am very good, and as usual, I used to be. So it's very great morning that I am in front of you. So, Dr. Ajay Pal Singh has an experience of 19 years of teaching and has authored over 25 journals, Yeah, which is a huge thing, sir. yeah, And I am pretty clueless about GPAT, which also happens to be today's topic. So, I would like for you to enlighten us about GPAT. yeah. GPAT is a graduate pharmacy aptitude test, and it is national level examination conducted by the NBEMS, which is National Board of Education in Medical Sciences. So this test is generally given for by those candidate who seeks admission in master in pharmacy, or you can say that who want to pursue their master of pharmacy. Okay. So while they pursue their master of pharmacy, they got the financial assistantship from the Ministry of Education, and now it is through the Pharmacy Council of India, and very So, how much stipend do they get? it is a very good amount, that is around 12,500 per month, and generally Okay. given to those candidates who have qualified the GPAT examination, and this is generally given for the duration of the 2 years. So Okay. except this, there is a contingency amount is also, and that accounts about 30,000 Oh for my the God. duration of 24 months. So this type of the financial assistance is given to those students who have qualified the graduate pharmacy aptitude Okay. test. So, where have you done your education from? As far as the question of my academic background, I have done my graduation from the DIPSAR, or you can Dipsar. say DIPSRU, which is one of the very premier institute located in Pushpihar, Delhi. I am alumni of that student. I am proud to be for that. Also, you have done your Yeah, education so from Delhi, my BPharm has been completed in the year 2003, and 2003. after that I have given the GATE examination. At that time, there is you can say that GPAT is a substitute for the GATE Okay. exam, which is conducted by the IITs. So in pharmaceutical sciences, I have given that GATE, and after qualifying the GATE, I got admission in Guru Jambeshwar University, which is A grade university, and my master is in specialization of the pharmacognosy, which deals with the medicinal plant and the phytochemistry part. So in 2005, I have completed my masters. After that, I have done the MBA also. That You've is in also done MBA. yeah, in operation management. So in 2008, I have completed my MBA. Okay. Then I got admission in PhD again PhD. in that university, that is Guru Jambeshwar University, Okay. on regular mode. I got the senior research fellowship at that time from the Ayush department, and in 2012 I have completed my PhD from that Okay, sir. student institute. Apart from that, I have also done two postgraduate diploma course also that deals with the clinical research, and one is in pharmacovigilance. So this is very short about my academic So you background. have done a lot. Yeah, That is very inspiring, sir. yeah, that is the need of our. Okay, so like this GPAT exam, why is it necessary for students to appear? Yeah, as I told you that the essentiality is that to get admission in the post graduation course, and that is of the if you want to pursue your post graduation course from the institute of reputed and national importance, like BHU, you must have heard about Oh, yeah, that, or Punjab BHU. University, or even from DIPSAR and NIPER. Hmm. So basically, you have to qualify that exam. Hmm. So, and moreover that as I told you that you get the financial assistantship, and Hmm. all the fees will be covered in that Okay. scholarship. So this is the essentiality in that term. And moreover, as I told you that if someone appears for the government job Hmm. after completing their PhD, or completing their masters, so in that
in qualifying qualifying Preference? criteria, तो preference so होने वाला the preference and weightage is given to those candidates who are GPAT qualified. है। Okay. So there is a win-win situation for all those candidates who are get GPAT qualified. तो सर इसका eligibility criteria क्या है? Eligibility criteria जो है, you must have the bachelor's एंड ये जो बैचलर्स आपकी होगी वो हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस में ही होगी, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जिन कैंडिडेट ने हमारी बी फार्मा करी हुई होती है तो वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ऑल्दो इसके साथ कुछ बातें होती है, जैसे कि हमारा जो मोटिव है जीपैट देने का वो ये है कि हमें एम फॉर्म में एडमिशन लेना है। तो एडमिशन जब लिया जाएगा, जब बी फार्म आपकी पूरी हो जाएगी, तो बी फार्म में जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं जनरली 8 सेम और 7 सेम के, तो वो कैंडिडेट जो हैं इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और वो इसको क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा हमारे 5th सेम 6th सेम 3rd सेम के स्टूडेंट भी जो हैं इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन उनके लिए ये क्या होता है, एक रिहर्सल टाइप हो जाता है उनके, मतलब कि उनको रूबरू करना कि एग्ज़ाम के बारे में उनको कुछ पता चलता है, तो मेन वो पर्सन जो है इसलिए देते हैं। तो जो अगर क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो बस बैचलर जो जिन्होंने बी फार्म करी है वही इस एग्ज़ाम को दे पाते हैं। और सर कोई इसका एज क्राइटेरिया? एज क्राइटेरिया इसमें कोई भी नहीं है। किसी पर्सन में अगर 5 इयर्स का गैप्स आ गया या 10 इयर्स का गैप्स आ गया वो भी दे सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होता है उस पर समटाइम कुछ फैमिली बर्डन्स होते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग जो बी फार्म है वो स्टूडेंट्स जॉब्स में या फिर इस तरह प्रोफेशनल फील्ड्स में चले जाते हैं। लेकिन जब वो 3 और 4 इयर्स के बाद उन्हें लगता है कि भाई हमें ये करना ही है, तो वो दे सकते हैं। तो इसका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आंसर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी पर्सन जो है कितनी भी दे सकता है, उसमें भी या इनफाइनाइट दे सकता तो है। सर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आपने कुछ ट्रेंड्स या पैटर्न्स आपने कुछ नोटिस करा हो, जो बदला हो या कुछ नया आया हो? डेफिनेटली, जैसे कि अगर हम देखें कि जो हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स है वो हमारा 4 ईयर कोर्स है। हाँ जी। और यू कैन से 4th ईयर और 8 सेम कोर्स है। तो जो हमारे 8 सेम्स होते हैं इनमें अराउंड जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अराउंड 30 to 32 सब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी, या that is frank, और इसीलिए कहा जाता है yeah, that's a lot, and it is generally said that BPharm is considered to be one of the toughest course. The reason behind that is that we have to cover lots of courses that is of the medicinal background as well as the इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पर एक कोर्स होता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो और इस कोर्स का ये सिग्निफिकेंस है कि भाई जो पर्सन है वो जो है मेडिसिनल फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ पर मशीनों के साथ काम करता है, तो उसको समवट नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी डाइवर्स हमारे जो हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 32 सब्जेक्ट्स हैं, तो 32 सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ पोर्शन आता है, लेकिन कुछ वेटेज जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें से जनरली जो है हमारा 15%, जो अगर मैं 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं 100% में, तो 15% जो है केवल उस एक सब्जेक्ट से आ रहा है। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट हमारा फार्माकोलॉजी का है, तो फार्माकोलॉजी से भी सिमिलरली जो है हमारा 15% का वेटेज होता है। तो अराउंड जो है हमारे 8 to 10 सब्जेक्ट्स जो हैं ऐसे हैं जिसमें कि जनरली जो है क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो एक स्टूडेंट होता है जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट्स को हमें वेटेज देना है। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट जो है हमारे हैं जिसमें वेटेज ज़्यादा है, जैसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देन आपका फाइटोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। तो इन सब में जो वेटेज है अराउंड मोर देन 10 का है। एंड इफ ए पर्सन gives the attention particularly to these subjects, then he can easily crack the GPAT examinations. तो ये एक स्कीम यू कैन से या जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व किया गया है लास्ट 15 ईयर्स का, जो मैंने आपको ये बताया 15 साल का पैटर्न बताया ये आपको। सो जो एग्जाम पैटर्न है वो डिसाइड कौन करता है? ये एग्जाम पैटर्न जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये NB
NBEMS जो हाँ बोर्ड जी। है वो इसको कंडक्ट करवाता है। तो NBEMS बोर्ड में बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं जो कि एक एमिनेंट इंस्टीट्यूट से होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ प्रोफेसर्स हमारे नाइपर से हैं, कुछ BHU से हैं, सर कुछ नाइपर? टिप्सर या नाइपर यू कैन से, जैसे आपने सुना होगा IIM हाँ जी। मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है, तो IIM इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट। हाँ, तो one of सिमिलरली the इन best. pharmaceutical sciences, NIPER is just like the IIM. Okay. So they are very elite institute, and generally 6 or 7 NIPERs are situated in our country, and one is very prominent, that is NIPER Mohali. सो नाइपर जो हुआ, नाइपर अच्छा नाइपर को जो है, नाइपर में इफ समवन वांट टू टेक द एडमिशन और हु वांट टू कैरी आउट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द नाइपर, ही हैज टू क्वालिफाई फर्स्ट GPAT, एंड आफ्टर दैट he again have to appear in a test which is conducted by NIPER itself. तो So दो टेस्ट GPAT, देना yeah, पड़ेगा। GPAT is a qualifying Okay. test to appear in The exam. NIPER Oh examination. my God. तो ये जो है हमारे नाइपर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर उसके लिए हमें सारा कुछ चाहिए होता है। तो प्रोफेसर्स की हमारी बात चल रही थी, तो जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो हमारे अराउंड 10 to 15 प्रोफेसर को सेलेक्ट किया जाता है। फिर वो जो है वेटेज के अकॉर्डिंग जो है एक क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड में भी चल रहा हो उस चीज़ पे जो है ज़्यादा क्वेश्चन को जो है वो दिया जाता है। तो जो बोर्ड, जैसे बताया मैंने, बोर्ड जो है NBEMS का बोर्ड है इटसेल्फ, वो पेपर को सारा सेट करता है और वो पैटर्न बनाता है। So what is the marking scheme for this GPAT examination? Yeah, in GPAT, generally 25 questions are given, and each have weightage of 4 marks. तो 4 मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी Negative marking भी। नेगेटिव मार्किंग का भी एक ट्रेंड है। तो 1 marks is deducted for the negative and wrong answer. Okay. So you can say that 25 marks generally deducted for the wrong answer. So 4 marks are given for the Right each answer. question. So that account for 500 marks. And for qualification, just for qualification, you only need the 60% of marks. So you can say that somewhere in between 280 and 300, if you crack that marks, you can easily qualify the Okay. GPAT. So what is the exam difficulty level? Yeah. Is it like intermediate, or something which is very hard for students to appear? Actually, it is mixed, that some of the portion is very easy, so that anyone can attempt. 30% portion is generally of intermediate level, and 40% portion is of hard level. So that every student can attempt some portion, and that depends only how much input a particular student gives for that exam, and how hard he has prepared for the GPAT examination. Okay. Based on that, he qualified. Okay, sir. So also, in what language is the exam conducted in? Yeah, it is conducted in the English language. Only and- English? Yeah, only English, and it is a computer-based test, CBT generally we say, and the duration for that test is 3 hours. 3 And hours. all the 125 questions are of objective Okay. types. Generally, MCQs? Yeah, MCQs. Okay, sir. 4 choice are given for that, so you have to mark one of that. So what tips would you like to give our viewers who are watching and who want to appear for GPAT examination? Yeah, firstly, I would like to say that it is very easy to crack the GPAT examination, but for that we have to identify those subjects, or you can say those areas which are having higher weightage, and you don't need to prepare or to complete or to cover all these courses. As I told you that there are around 30 to 32 Yeah, subjects, which is impossible to it cover. is really very impossible to cover all those subjects. Because in you have depth to- जाना would be very hard. या डेफिनेटली। तो आपको जो वेटेज देनी है वो आपको उन सब्जेक्ट पे देनी है जिसमें से आपका 10 से 15% जो है सिलेबस कवर Cover हो रहा है हो फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। Okay, sir. और
अब मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि आप 70% ही कवर करिए हाँ जी। पूरे सिलेबस का, और 70% कवर करने के बाद आप वहां पर भी अटेम्प्ट केवल 70 या 75% करते हैं। अगर आप 75% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो देन डेफिनेटली यू वुड बी इन रैंकर, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट 10। सो लेकिन अगर मैं बात करूँ, हमारा मोटिव है केवल क्रैक करना, तो क्रैक करने के लिए मैं इतना बोलूँ कि अगर आप 60% भी बिल्कुल राइट अटेम्प्ट करते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस, देन यू वुड डेफिनेटली क्रैक दी जीपेट एग्जामिनेशन। सो नीड जो है वो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट 15 ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको थोरोली स्टडी करना है, उनको अच्छे से खुद भी एक तरीके से उन पर रिहर्सल करनी है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड इन सब्जेक्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दी पर्टिकुलर चैप्टर्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 हमारे कोर्स हैं, 32 कोर्स में मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको मुश्किल से 10 या 12 कोर्स करने हैं, तो इसी तरीके से जो हमारे कोर्स है, कोर्स में भी वही चैप्टर्स है, तो वो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है जिस पे हमें जो है अपने जो है हमारा इम्फेसाइज होना चाहिए। So you're saying to work smarter and not या work या harder. डेफिनेटली। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी हो तो एक स्ट्रेटेजी हमें चाहिए होती है कि रेदर देन कि हम इधर जाएं उधर जाएं, पिलर टू पोस्ट टू, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वी हैव टू बी एक्ट वेरी स्मार्टली, एंड मोर ओवर ए पर्सन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग from the when he got admitted in the 7th sem. Okay. If a person gave hardly 1 hour daily, then I assure you that he would definitely crack the GPAT examination. Okay, sir. And So you need to be motivated and yeah, very regular with yeah, studies. for whole year he has to be motivated, and due to some reason he couldn't. So in last 5 months हाँ जी. he can also prepared for the GPAT examination. And for your information, in our department we generally give the classes for GPAT तो examination. आप स्पेशली केटर करके स्पेशली हम करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, एंड दिस इज ओपन फॉर ऑल दी other candidate, that is other student from other institute who want to avail this facility. So regularly we conduct the classes and we prepare our student for the GPAT examination. Okay. So what tips would you like give to students to stay motivated to study? Because आजकल सर आप देख रहे हैं कि people are always busy on their phones, scrolling reels, making Snapchats and all that. So how would you help students in staying motivated? या अगर मोटिवेट रहना है तो उसका तो वही है कि यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, you shouldn't deviate. And or in other word you can in other word what I can say that you should be focused for at least 1 year. As I told you that B Farm जो हमारे 4 साल का कोर्स है, 3 साल आप करिए, लेकिन 1 साल आपका पूरा डेडिकेशन चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि बच्चे को अगर इसका सिग्निफिकेंस पता होगा कि भाई मुझे इतना अच्छा एक अमाउंट मिल रहा है 15,000 का, तो वो भी उसके लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर हो सकता है। तो यही मैं कहूँगा कि भाई डेविएट नहीं होना, जो बोला जाता है डिसिप्लिन में रहना है, तो केवल एटलीस्ट फॉर final year. Okay. During this 7th So what or 8th are the sem. career options after doing the courses of like B Pharmacy, M Pharmacy and all? Yeah, there are a lot of scopes, especially in pharmacy, and one is that you can go in research, basically in pharmaceutical industry, as you can see that in corona time, Yes, sir. this is one of the field which is recession proof. And जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर हमें नई ड्रग बनानी होती है, और उसमें जो हमारा रिसर्च का सारा कुछ नई फॉर्मुलेशन जब डेवलप करते हैं, तो एक तो वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप बोलते हैं तो अकेडमिक्स, क्योंकि अकेडमिक्स में जो है आपकी पीजी इज मस्ट, और मोर देन PG it is nowadays PhD. Yes, sir. That is must to enter in academic field. तो वो भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसके अलावा मार्केटिंग जो है, भाई इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट के बाद आपने देखा होगा कि मार्केटिंग उसकी चाहिए, तो मार्केटिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट जनरली देयर इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच, दैट इज MBA in pharmaceutical science. MBA in pharmaceutical yeah science. That is carried out in 2 or 4 institute. One is in Jaipur and second one is in
नाइपर. It's my तो first time hearing about MBA in MBA in pharmaceutical. pharmaceutical. So you are super specialized person, particularly in that field. Okay. तो मार्केटिंग में आप जा सकते हैं. देन इसके अलावा आपके एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन से, जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, और जो मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट होते हैं वो अपना ही काम करते हैं, जैसे अपनी शॉप्स हो गई, मेडिकल एजेंसी हो गई, इस तरीके का बिजनेस चलता है. और एक अगर आपको एक और अच्छा पता चलेगा कि डिफेंस, जो डिफेंस में भी जो है एक पोस्ट क्रिएट करी गई है हमारी 2 years एगो, वो है एक फार्मा सिपाही. तो वो जो है, जैसे भाई हमारे जो अधिकतर रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जनरली वो डिफेंस को ऑप्ट करते हैं, तो उसमें उनका रिजर्वेशन हो जाता है. जिस कैंडिडेट ने डी फार्म करी हुई हो तो वो इजीली सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड कम्बिनेशन. और जो भी हमारी एक बटालियन होती है तो उसमें एक फार्मा सिपाही का होना ज़रूरी है, तो वो भी उसमें जा रहा है. और अगर हम देखें तो जो फॉरेन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्कोप है. और ख़ास तौर से जो फार्मेसी है, इट इज़ द टॉप मोस्ट प्रोफेशन, especially in the European country and American country. It is number 1 profession. Although the scenario is changing nowadays in our country also. Yeah. The more weightage is given to the pharmacy. जो आम लोग होते हैं वो फार्मेसी को बस इतना समझते हैं कि दुकान है, लेकिन ये इटसेल्फ मतलब विदाउट फार्मेसी और विदाउट फार्मेसी फील्ड यू कांट इमेजिन कि मेडिकल जो फील्ड है वो हमारा हो भी सकता है, क्योंकि जब आपकी दवाइयाँ नहीं होगी तो फिर आई डोंट थिंक कि कुछ भी हो पाएगा. और ये जो है हमारा, ये अब से नहीं है, मॉडर्न साइंस भी नहीं है, ये एक प्राचीन विधि है. हमारा जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा है, जैसे कि आपने देखा हुआ आयुर्वेदा में क्या होता है कि जो हमारी मेडिसिन होते हैं डेट इज इन द फॉर्म ऑफ अवले, ले हो गई, गुटिका हो गई, तेला हो गई, और ये स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी. अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश जो होता है वो एक अवले है. इट इज जस्ट लाइक इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनिटी के लिए लिया जाता है. भाई सर्दियों में इसीलिए लेते हैं कि भाई हमें इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे. इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा बहुत सी प्रिपरेशन स्पेशली फॉर द फीमेल, दैट इज द कुमारिया सर्व, या फिर आपने एक झंडू पंचारिष्ट बहुत कॉमन हम ऐड देखते हैं, तो वो भी जो है एक आपकी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है. तो ये सारी जो है मेडिसिन है, और मेडिसिन में जो डील कर रहा है वो फार्मासिस्ट कर रहा है. तो ये अभी नहीं है, प्राचीन काल से ही ऐसा होता जा रहा है. So, sir, is Ayurveda also a subject in pharmacy? Ayurveda, as I told you that one of the subject is the pharmacognosy. तो pharmacognosy जो है वो हमारा डील करता है मेडिसिनल प्लांट. और आयुर्वेदा में जो आपकी प्रिपरेशन बनती हैं वो अधिकतर 70 to 75 प्रिपरेशन जो होते हैं वो हमारी मेडिसिनल प्लांट से ही बनती हैं. तो थोड़ा बहुत पार्ट जो हम इसको जो है आयुर्वेदा का भी कवर करते हैं. लेकिन एक और बात है, जो हमारा फार्मेसी का कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो इंडिया में जो हमारे अराउंड 4 इंस्टीट्यूट हैं जो बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा करवाते हैं, स्पेशली आयुर्वेदा, जो जिसमें से एक इंस्टीट्यूट हमारा कुरुक्षेत्र में है, एक गुजरात में है, और एक जो है बरेली में है. तो मतलब उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया. जैसे आप देखेंगे आजकल की आयुष डिपार्टमेंट, आयुष ने क्या करा है, वो आयुर्वेदा को प्रमोट करा है. तो BMS जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनका स्पेसिफिक क्लिनिक जो है वो खोले जा रहे हैं. तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट रखा जाता है वो रखा जाता है जिसने बी फार्म आयुर्वेदिक फील्ड में करी हुई हो. तो वो भी एक अच्छा फील्ड है. तो आप you can categorize that B Farm in allopathy and B Farm in आयुर्वेदा. तो फार्मास्यूटिकल साइंस जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारी बात जो शुरू हुई थी वो स्कोप से शुरू हुई थी. तो हर जगह इसका स्कोप है, बस ये डिपेंड करता है जो स्टूडेंट है उसके एप्टीट्यूड पे, उसके इंटरेस्ट पे, कि इन विच फील्ड ही वांट टू परस्यू हिज और हर कैरियर. तो स्कोप्स तो बहुत अच्छा है. और सबसे बड़ी बात, इट इज ए रेसिशन प्रूफ प्रोफेशन. सब कुछ रुक जाएगा लेकिन ये नहीं रुकेगा. तो ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है ड्यूरिंग दी कोरोना टाइम. सब कुछ बंद था लेकिन मेडिकल शॉप खुली हुई थी. तो सर, व्हाट मेड यू चूज दिस करियर in pharmacy? In pharmacy, actually,
जो मेरा जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था वो हुआ था कि जब मैं ड्यूरिंग दी 8th और 10th एक्चुअली आई वाज फॉल सिक कंटिन्यूसली फॉर 2 to 3 month। तो जब मैं मेडिसिन लेता था ये लेता था तो एक क्यूरियोसिटी वहां से क्रिएट हुई कि मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ तो दवाइयाँ ले क्यों रहा हूँ, मतलब ऐसा इनमें क्या है। और यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट at that time I used to write the name of those drugs, मतलब एक अपने इंटरेस्ट के लिए कि मुझे खुद से बुखार हो रहा है, हाँ curiosity क्योंकि आपको। डॉक्टर ने ये दवाई दी है तो मैं उसको लिखता था कि हाँ भाई ये है क्रोसिन है, चलो ये ली जाएगी। मुझे एक बार जॉइंडिस हुआ तो जॉइंडिस में डॉक्टर ने जो है ये ली 52 दी। तो एक 8th और 9th का बच्चा ली 52 के बारे में क्या जानेगा, लेकिन मेरे माइंड में ये आया ली 52 है, चलो किसी को कभी कुछ होता है तो ली 52 एक मेडिसिन है जो कि जब भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लीवर्स की तो उसमें वो दवा जो है वो दी जाती है। तो धीरे धीरे ऐसे करके इंटरेस्ट हुआ। जब 12th करी, अच्छा 12th जो थी मेरी जो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों से थी, मेरी बायो भी थी और मैथमेटिक्स भी थी, PCMB या पीसीएमबी से मेरी ये थी। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज दोनों थी, लेकिन Infinite थी, हाँ। वेटेज मेरा जो था वो Biology। मेडिकल फील्ड में गया। तो मेडिकल फील्ड में मेरा एडमिशन आपको बताता हूँ, है तो थोड़ी पर्सनल बात है। मेरा जो है पूसा के थ्रू एक एग्जाम होता था तो उसके थ्रू मेरा वेटनरी में भी मेरा नंबर आया था, मेरा फॉरेस्ट्री में भी नंबर आया था कि बीएससी इन फॉरेस्ट्री, मेरा इधर फार्मेसी में भी नंबर आया हुआ था, और मेरा जो है बीबीए इनके एग्जाम कंडक्ट होते थे उसमें भी नंबर आया हुआ था, सारे उसमें बीटेक में भी इवन नंबर आया था। लेकिन उस टाइम जैसे मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था कि भाई मुझे कुछ दवाइयों में करना है, Pharmacy। तो वहां से उस टाइम मैंने जो है इसको बी फार्म को ऑप्ट किया, और आई एम वेरी लकी कि आई गॉट एडमिशन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट। डिप्सार। तो वहाँ पर डिप्सार में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक होता है ना कि जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक वहाँ का कल्चर जो है बस उस कल्चर को फॉलो करते रहो तो आप अपने आप ही आगे एक्सेल हो जाते हो। तो वहाँ के जो एलुमनाई हैं उन लोगों को हम देखते थे, उनसे बात होती थी, जब उनको बुलाया जाता था तो उनसे हमें टिप्स मिली कि गेट जो हम आज कर रहे हैं जीपैट जो आज का हमारा टॉपिक है, तो वो लोग हमें सजेस्ट करते थे कि आप जो है इसको इस तरीके से तैयार करिए। और उस टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम में जो गेट एग्जामिनेशन था वो रिटन मोड में होता था कि वी हैव और डिफिकल्ट कि वी हैव गिवन दी 14 पेजेस for that and generally 10 to 12 questions are given and we have to attempt the 8। तो वो डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखना और बहुत लिमिटेड टाइम में लिखना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें क्या होता है आजकल के टाइम तो मुझे लगता है कि बहुत इजी है कि जस्ट यू हैव टू मार्क दिस सर्कल, तो बहुत से वो भी कंप्यूटराइज है। तो जो उस टाइम है, क्योंकि एक चीज को किसी चीज को रिप्रोड्यूस करना और वो भी एक बेटर वे में, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उस टाइम में जो डिफिकल्ट लेवल अगर मैं आपको जैसे आप मुझसे पूछ लेते तो लगभग मैं आज के टाइम में 10 times इजी मानता हूँ जीपैट का जो उस टाइम के कंपैरिजन में है। तो उस टाइम जैसे और पेपर भी जो है आईआईटी और वो कैंडिडेट और वही इस चीज को कंडक्ट कराते थे। तो ये सारी बातें हैं। So how was your college life at DIPSAR? Yeah, marvelous. Marvelous? Yeah, marvelous. Actually, I was a hosteler there. Okay. And I think without hostel life, student life is nothing. True, sir. Exactly. Actually, it gave a sense of responsibility also and independence. and independency, or it create so much. It grooms your personality that you took some decision and you have to take care of yourself and you have to maintain the relation with your seniors, with your juniors, how you talk, how you time manage, as there is no interference from your parents and something like that. So it definitely it helps you in shaping yourself. Yeah, shaping. So again I am very fortunate that मैं हॉस्टलर भी था, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में था, वहाँ पर पढ़ाई का एक पर्टिकुलर टाइम होता था, स्पोर्ट्स को वेटेज प्रॉपर दी जाती थी जो आजकल शायद मिसिंग होती है, क्योंकि बहुत से युवक जो है आज के टाइम में वो मिसलीड है, उसको ये पता ही नहीं है कि
हमें करना क्या है। वो डेट मे बी ड्यू टू दी लैक ऑफ गाइडेंस यू कैन से, या And फिर lack of awareness as well, sir. लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो, और जो है एक ऑफ बीट हो जाएगा टॉपिक से, थोड़े मे बी डेविएट हो जाए। मैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे आजकल का ये कल्चर सोशल मीडिया का बहुत इजी आ गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जस्ट ऑन ए क्लिक, तो ये भी कहीं बार जो है दीज आर वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग्स, तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को। Yes, sir. तो अब वही सारा बात जो है वो माइंड का है। अगर हमारा फोकस हो, अगर हम एक प्रॉपर डिसिप्लिन में हो, तो हम जो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। So, what would you like to say to the people who are going to appear for GPAT? एक छोटा सा अपने छोटा सा अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे कि अब जो है फैब का मंथ है, इट इज अबाउट टू कंप्लीट, तो वी आर हैविंग अराउंड 3 months, less than 3 months. हाँ 3 months। जनरली जो ये जीपैट का एग्जाम है ये जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, तो मार्च अप्रैल मई जून। तो अगर अब भी हम लोग जो है पूरा वेटेज दें, पूरा वेटेज किसको, मतलब फोकस में कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने बताया था कि भाई आप 1 घंटा दो, अगर आप आज के टाइम में भी अगर मैं 3 घंटे या 4 घंटे अपनी डेडिकेटेड आवर्स जो है वो देता हूँ पढ़ने के लिए और करता हूँ, जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताए हैं उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और अगर मैंने लास्ट 15 ईयर्स के केवल क्वेश्चन बैंक ही कर लिए हैं, हाँ जी, तो वो हमारे बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत इजीली हमारा जो एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। दूसरी बात कि इसमें जैसे नोट्स जो हैं बिल्कुल क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक लाइन उस बुक से उठाई, एक बुक से उठाई, एक तो उसका मिक्सचर बना देते हैं, दैट इज जस्ट लाइक ए बुक, अगेन इट इज ए बुक। तो जो एक पढ़ने का तरीका होता है कि भाई जो चीज आप कर रहे हो, जो चैप्टर आप कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो 2 लाइन में हम उसका ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, उसका आउटकम क्या है कि क्यों हम कर रहे हैं। अगर इसको मैं 2 या 3 लाइन में लिख दूं, बाकी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में अगर किसी भी चैप्टर को कवर करता हूं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है। और मेन जो हमारे बात जो कहते हैं ना कि पढ़ना है, मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, मुझे उसके लिए नहीं पढ़ना है कि मैंने क्रैम कर दी बस रटे जा रहा हूँ, लेंथ बढ़ा रहा हूँ, दैट इज ऑफ द नो यूज। क्योंकि अल्टीमेटली जो ये हमारा एग्जाम है ये एमसीक्यूज टाइप है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, अगर आपको हर चीज का ऑब्जेक्टिव पता होगा तो देन यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और उसको अटेम्प्ट के बात नहीं, उसको करेक्ट अटेम्प्ट आप करोगे एकदम श्योर होके। हाँ श्योर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 60%, केवल 60% मीन्स 125 का 16% अराउंड हो गया, लगभग 12.5 25 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125। अगर मैं इस चीज को लेके चलूं कि मुझे केवल 75 क्वेश्चन ही करने हैं, मुझे 125 करने ही नहीं है, तो ये मैं एश्योर करता हूं कि आपका जीपैट क्वालिफाई होएगा ही होगा। दिस इज द श्योरिटी। बस ये है कि एक स्ट्रेटेजी आपको अपना ली है। आप 125 क्वेश्चन के लिए ना पढ़िए, आप केवल 75 क्वेश्चन के लिए पढ़िए। लेकिन वो जो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आप उन सब्जेक्ट में कर लीजिए। तो हार्डली 32 में से आपको केवल 10 सब्जेक्ट आपको करने होंगे, और 10 सब्जेक्ट जो 10 सब्जेक्ट्स इन 3 months यू कैन इजीली कवर। तो ये इस तरीके से, क्योंकि विद होनेस्टी वी शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो किसी को वो नहीं, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना, फोकस के साथ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना। 3 घंटे काफी है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। बाकी इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे पीके क्लासेस है, तो उसमें भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, बजाय कि आप फेसबुक स्क्रॉल करो उसकी जगह अगर हम अच्छी चीज स्क्रॉल करें तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये मेरा एक सजेशन है। We'd like to call it a day, and I would like to thank you, sir, for joining us today, and good luck to all the people who are going to appear for GPAT. Thank you. Yeah, thank you, Vibhuti. Thank you so much, sir. मैं ऐसा इधर thank you so much, sir, and we'd like to call it a day, and good luck to all the people who are going to appear for GPAT examination. एक बार रिपीट करूँ? थोड़ा नर्वस हो गई। पानी चाहिए? नहीं। That was it. We'd like to call it a day. Thank you so much, sir, for joining us today, and we'd like to wish a very best of luck to all the people who are going to appear for GPAT this year.
Yeah, thank you, Viviti, for calling me, and again, wish a lot for all the aspirants who are preparing for the GPAT examination. Thanks a Okay, lot. sir.